کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس دنیا میں کچھ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو مٹی کو بھی سونا بنا دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ زرخیز زمین پر بھی خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں؟ آخر کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان؟ کیا یہ قسمت کا کھیل ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہے جسے جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے؟ دی سٹل وائس میں آپ کا دل سے خیر مقدم ہے۔ آج ہم جس سفر پر نکلنے جا رہے ہیں وہ کسی عام کہانی کا سفر نہیں ہے۔ آج ہم دروازہ کھولنے جا رہے ہیں انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور اثر انگیز کتاب کا، نپولین ہل کی شاہکار تصنیف تھنک اینڈ گرو ریچ۔ دوستو، اگر آپ نے یہ کتاب نہیں پڑھی تو بھی کوئی بات نہیں۔ آج کی اس طویل نشست میں ہم اس کتاب کے ایک ایک ورق کو اس طرح پلٹیں گے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے پوری کتاب خود پڑھ لی ہے۔ ہم اس کتاب کے پس منظر سے لے کر اس کی گہرائیوں میں اتریں گے، اس کے باب باب پیغام کو سمجھیں گے اور آخر میں وہ نچوڑ نکالیں گے جو آپ کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ اپنے دل اور دماغ کے دروازے کھول دیجئے، کیونکہ آج کا یہ سفر آپ کو خود سے ملوائے گا۔ تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے؟ وہ کون سا اصول ہے جو تمہیں عام انسانوں سے الگ کرتا ہے؟ 25 سال تک ان تمام تجربات کو نچوڑنے کے بعد جب یہ کتاب لکھی گئی تو یہ محض کاغذ سیاہ کرنے کا عمل نہیں تھا، بلکہ یہ انسانی تاریخ کے سب سے بڑے تجرباتی نتائج کا خلاصہ تھا۔ کارنیگی نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ یہ کتاب لاکھوں انسانوں کے لیے غربت اور ناکامی کی زنجیریں توڑنے کا پروانہ بن گئی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پوری تحقیق کا نچوڑ کیا ہے؟ نپولین ہل نے اتنے سارے ارب پتیوں میں کیا مشترکہ چیز دیکھی؟ کیا وہ سب بہت پڑھے لکھے تھے؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ کیا ان کی قسمت پہلے سے لکھی گئی تھی؟ اس کا جواب بھی نفی میں ہے۔ نپولین ہل کہتا ہے کہ دنیا کے ان تمام کامیاب ترین لوگوں میں صرف ایک ہی بات مشترک تھی، ان کے سوچنے کا انداز، ان کے خیالات کی طاقت اور ان کا پختہ یقین۔ کتاب کا پہلا اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ دولت اور کامیابی کا آغاز سب سے پہلے دماغ میں ہوتا ہے۔ باہر کی دنیا میں جو کچھ اب دیکھتے ہیں وہ دراصل آپ کے اندر کی دنیا کا عکس ہے۔ اگر آپ کے اندر شکست کا خوف ہے تو باہر بھی شکست ہی ملے گی، اور اگر آپ کے اندر ایک اٹل یقین اور پکی لگن ہے تو پوری کائنات آپ کے راستے کی رکاوٹیں ہٹانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ نپولین ہل اس کتاب میں بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسان جو کچھ بھی اپنے دماغ میں تصور کر سکتا ہے اور جس پر سچا یقین رکھتا ہے وہ اسے حقیقت میں بھی بدل سکتا ہے، بلکہ یہ خیالات کے ایک خاص ضابطے اور اصول کا نتیجہ ہے۔ آئیے اب اس کتاب کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ نپولین ہل نے اس کتاب کو 13 ایسے اصولوں میں تقسیم کیا ہے جو کامیابی کی سیڑھیاں ہیں۔ آئیے ان میں سے انتہائی اہم اور بنیادی اصولوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہیں تاکہ کتاب کا اصل جوہر اب تک پہنچ سکے۔ پہلا اصول ہے خواہش۔ کتاب کہتی ہے کہ محض یہ تمنا کرنا کہ کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی، آکاش میں کامیاب ہو جاتا، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ خواہش اور ایک حقیقی جلتی ہوئی تڑپ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب تک آپ کے دل میں کسی مقصد کو پانے کے لیے اتنی شدید تڑپ پیدا نہ ہو کہ آپ اس کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہوں، تب تک کامیابی خواب ہی رہے گی۔ ہل ایک مشہور مثال دیتا ہے کہ جس طرح کوئی جنگجو سمندر عبور کرنے کے بعد اپنی کشتیاں جلا دیتا ہے،
ताका वापसी का कोई रास्ता ना बचे। इसी तरह जब इंसान अपनी नाकामी के तमाम रास्ते बंद करके सिर्फ एक ही मकसद पर तवज्जो मरकूज करता है, तब जाकर कामयाबी इसके कदम चूमती है। दूसरा कदम है ईमान। ईमान एक ऐसा ज़हनी जज्बा है जो हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। नेपोलियन हिल समझाता है कि जब आप अपने ख्यालात में मुसलसल कामयाबी का तसव्वुर करते हैं और बगैर किसी शक के ये मान लेते हैं, तो आपका लाशऊरी ज़हन इस तस्वीर को सच करने के लिए काम शुरू कर देता है। शक इंसान का सबसे बड़ा जहर है और यकीन वो तिर्याक है जो तमाम रुकावटों को मिटा देता है। तीसरा उसूल यह है कि आप अपने लाशऊरी ज़हन को कैसे मुतासिर करते हैं। हमारा लाशऊर इस बात को नहीं समझता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। वो सिर्फ इस बात को मानता है जो बार उसके सामने दोहराई जाती है। अगर आप सुबह शाम खुद से ये कहेंगे कि मैं नाकाम हूं, तो आपका लाशऊर इसको सच मान लेगा। इसके बरक्स अगर आप मुसलसल मुस्बत जुमले और अपने मकासिद को दोहराएंगे, तो आपका ज़हन खुद ब खुद ऐसे रास्ते ढूंढ निकालेगा जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। चौथा उसूल है खुसूसी इल्म। बहुत से लोग ये समझते हैं कि आम तालीम ही सब कुछ है, लेकिन नेपोलियन हिल वाज़े करता है कि आम मालूमात डिग्रियां इंसान को अमीर नहीं बनाती। दौलतमंद बनने के लिए किसी मैदान में फतह हासिल करने के लिए खुसूसी इल्म की जरूरत होती है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपका हदफ क्या है और इस हदफ को पाने के लिए जो मखसूस मालूमात दरकार हैं, वो आप कहां से और कैसे हासिल कर सकते हैं। इल्म सिर्फ ताकत नहीं है, बल्कि जब इस पर दुरुस्त अमल किया जाए तब यह ताकत बनता है। पांचवा उसूल है तखय्युल। नेपोलियन हिल तखय्युल को इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहता है। इंसान जो कुछ भी बनाता है, पहले वो अपने तखय्युल के कारखाने में तैयार करता है। तखय्युल की दो किस्में हैं। मसनूई तखय्युल, जहां पुरानी चीजों को नए अंदाज में जोड़ा जाता है, और तख्लीकी तखय्युल, जहां बरा रास्त कायनात की लामहदूद ज़हानत से इल्हाम मिलता है। जो लोग अपने तखय्युल को बेदार रखते हैं, वो कभी भी महदूद नहीं होते। छठा उसूल है मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी। सिर्फ ख्वाहिश करना और ख्वाब देखना काफी नहीं। जब तक आपके पास एक वाज़े मजबूत और लचकदार मंसूबा नहीं होगा, आप हुआ में तीर चिल्लाते रहेंगे। अगर आपका पहला मंसूबा नाकाम हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना मकसद ही बदल दें। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको अपना मंसूबा तब्दील करने की जरूरत है। कामयाब लोग अपने मंसूबे बदलते हैं, अपने मकसद नहीं। सातवां उसूल है इस्तिकामत। ये इस किताब का सबसे ताकतवर बाब है। दुनिया में जितने भी लोग नाकाम होते हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि वो मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचकर हिम्मत हार जाते हैं। वो ये नहीं जानते कि कामयाबी बस एक कदम के फासले पर थी। इस्तिकामत वो सिफत है जो थका देने वाले तूफानों में भी इंसान के कदम डगमगाने नहीं देती। शिकस्त सिर्फ एक आर्जी सिग्नल है। ये इस बात का सबूत नहीं कि आप हमेशा के लिए हार चुके हैं। आठवां उसूल है मास्टरमाइंड की ताकत। कोई भी अकेला इंसान दुनिया के तमाम मसाइल का तन्हा हल नहीं निकाल सकता। नेपोलियन हिल कहता है कि जब दो से ज्यादा ज़हन एक ही मकसद के लिए मुकम्मल ईमानदारी और हम आहंगी के साथ इकट्ठे होते हैं, तो उनकी मजमूई ताकत उनकी इनफरादी ताकत से कई गुना ज्यादा हो जाती है। इसे मास्टरमाइंड कहा जाता है।
तारीख के तमाम बड़े इदारे और कामयाब तरीन लोग इसी इज्तिमाई सोच का नतीजा है। दोस्तों, जब हम इस तवील सफर को समेटते हैं तो हमारे हाथ कुछ ऐसे अनमोल असबाक लगते हैं जो सिर्फ दौलत कमाने के लिए नहीं बल्कि एक कामयाब, पुरसुकून और बावकार इंसान बनने के लिए जरूरी है। आइए इन असबाक को अपने दिल की तख्ती पर लिख लें। पहला सबक, आपकी जिंदगी के हालात चाहे कितने ही खराब क्यों ना हो, आपकी असल ताकत आपके बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। आप जब चाहें अपने ख्यालात को बदलकर अपनी तकदीर का रुख मोड़ सकते हैं। दूसरा सबक, खौफ और शक इंसानी ज़हन के सबसे बड़े दीमक हैं। जब तक आप अपने अंदर से नाकामी का खौफ नहीं निकालेंगे, आप कभी भी बड़ा कदम नहीं उठा सकेंगे। नाकामी से डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि हर नाकामी अपने साथ कामयाबी का एक नया सबक लेकर आती है। तीसरा सबक, कोई भी इंसान अकेला तन्हा सब कुछ हासिल नहीं कर सकता। अच्छे लोगों का साथ, एक दूसरे का ताउन और मुस्बत सोच रखने वाले दोस्तों का हल्का आपकी तरक्की की सबसे बड़ी जमानत है। चौथा सबक, इस्तिकामत ही वो कुंजी है जो बड़े दरवाजे खोलती है। अगर आप में मुश्किल वक्त में डटे रहने का हौसला है तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है, ये इंसानी अज़्म का एक ऐसा तराना है जो सदियों तक आने वाली नस्लों को बेदार करता रहेगा। नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी के 25 साल इसलिए सिर्फ किए थे ताकि आप ये जान सकें कि आपकी जात के अंदर कितनी बड़ी ताकत छपी हुई है। अब गेंद आपके कोर्ट में है, आप इस किताब को पढ़े आना पढ़े, लेकिन इसका बुनियादी फलसफा आज ही से अपनी जिंदगी में उतार लीजिए। अपने ख्वाबों को कागज पर लिखिए, उनके साथ एक शदीद तड़प जोड़िए, एक मजबूत मंसूबा बनाइए और फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। याद रखिए, आपकी सलाहियतों की कोई हद नहीं है सिवाय इन हुदूद के जो आप खुद अपने ज़हन पर आयद कर लेते हैं। अगर आपको यह तफसीली और रूपरवर सफर अच्छा लगा हो तो दी सटिल वॉइस को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने इन अजीजों और दोस्तों के साथ शेयर करें जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि अगली बार दुनिया की किस शाहकार किताब पर हम इस तरह का जामे तज्जिया पेश करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।